Let me now bring in this live telecast my colleague Sushant Behra, who's been tracking the latest and for several years also how the situation is only worsening. Sushant, where are you exactly, at what location, and what does the sky, the surroundings look like, and what does it feel like to breathe? किस तरह से मुश्किलें जो हो रही हैं लोगों को ब्रीदिंग में, रेस्पिरेटरी इश्यूज में, उसके बारे में भी बताइए। देखिए पूजा, मैं इस वक्त कर्तव्य पथ पर मौजूद हूँ। मेरे पीछे अगर आप देखेंगे तो राष्ट्रपति भवन है। ये लुटियंस जोन्स का पूरा इलाका है, वो इस वक्त पूरी तरीके से एक स्मोक की चादर से लिपटा हुआ है। मैं जहां पर इस वक्त मौजूद हूं, यहाँ पर एयर क्वालिटी इंडेक्स 450 के पार है। जब सुबह यहाँ पर मैं आया था, लगभग मुझे आधे घंटे से ज्यादा ग्राउंड रिपोर्ट पर यहाँ पर खड़े हुए हो गया, लेकिन अब आधे घंटे में जो मैं फील कर पा रहा हूँ, मुझे खुद जो गले में जलन जो है वो हो रही है, सांस लेने में जो है वो दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और दिल्ली की ये जो सिचुएशन है वो पूरी तरीके से इसी तरीके की नजर आ रही है। जो लोग सुबह अमूमन यहाँ पर मॉर्निंग वॉक के लिए आते थे, वो इस वक्त यहाँ से नजर नहीं आ रहे हैं। लोग डरे हुए हैं कि आखिरकार अगर वो बाहर निकलते हैं तो उनको किस तरीके की परेशानियां होंगी। रेस्पिरेटरी जैसे डिजीज से जो लोग जूझ रहे हैं, जिनको सांस की प्रॉब्लम है, कोरोना से वो बाहर निकले हैं, उसके बाद उनको ये प्रॉब्लम और ज्यादा जो है वो बढ़ रही है। एनवायरमेंट एक्सपर्ट्स का मानना है कि जो एयर क्वालिटी इंडेक्स 850 के पार है, उसमें कहीं ना कहीं दिल्ली की जो सिचुएशन है वो हेल्थ इमरजेंसी की है। सरकार को इस पर पूरी तरीके से जो है वो आगे आकर के लोगों से अपील करनी चाहिए। हालांकि ग्राफ 3 जो है वो सरकार की तरफ से इमरजेंसी मीटिंग के बाद जो है वो लागू कर दिया गया है। दिल्ली के अंदर कंस्ट्रक्शन वर्क को पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है। निजी कंस्ट्रक्शन वर्क को लोग अगर अपने घर के अंदर रेनोवेशन करा रहे हैं, उसको पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है। लेकिन दिल्ली में इस वक्त हेल्थ इमरजेंसी की सिचुएशन जो है वो बनती हुई नजर आ रही है। दिल्ली के आनंद विहार इलाका जो है, जिसमें अगर कहा जाए यूपी बॉर्डर भी जो है वो टच होता है और दिल्ली बॉर्डर भी, वहां पर एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो 850 के पार है, यानी बेहद खराब स्थिति। और जो 850 is the air quality index at the Delhi UP border of Anand Vihar, where there are also bus stand. A lot of people throng that area as an intersection to go to different locations. This is absolutely terrible. This is not livable at all by any standard. Stay on with me, Sushant, because Amit Bhardwaj also joins us. Amit, where are you presently? What does it feel like to be breathing in the sort of air that you have, so that now the country knows what is happening? What does it look like? And importantly, what are those in the government, from the Aam Aadmi Party in Delhi, in Punjab, BJP in Haryana, in Uttar Pradesh and at the centre are doing about it? Pooja, let's cut across to visuals first. Right now, I'm at Bharat Mandapam, and the visual right behind me will give a telling picture. You know, this is the very spot which had become India's pride during the G20 event. And a few meters away from Bharat Mandapam, look at the visibility. Can you see anything from here? I doubt anything is visible. The Nataraj statue, which was in much talks, is not even visible. Even when Ravikant Totawara, our video journalist, is trying to zoom in, the visibility has actually dipped to that, worst level, which means, you know, if such is the situation of smog in the national capital, imagine the kind of air emergency that we are going through. And this needs a, coordinated effort by the Delhi government, by the NCR states, and even by the central government. The politics, the political bickering is not going to serve the people living in the NCR region. You know, it will be a big mistake if we think that this is only concerning for the Delhi residents, because the situation, as you were referring about Anand Vihar. Anand Vihar, we know for a matter of fact, is the bordering district of Delhi and Uttar Pradesh, which means, Ghaziabad is in no better situation. Noida, we know for a matter of fact, it is already going through a similar air emergency, or even worse, because even before Delhi witnessed, heavy dipping in the air quality, Noida was already suffering from higher levels of pollution. And the entire NCR zone is actually heading towards a similar fate. There will be no respite in Palwal, Faridabad, Gurgaon and the adjoining areas as well, which means there has to be coordinated effort.
You did ask about the Delhi government's response. Well, Delhi government today will be holding an emergency meeting. Gopal Rai will be heading that meeting, but we'll have to see as to whether the government is also getting some sort of support from the bureaucracy, which is much needed right now, because so far Delhi is actually also going through an unfortunate situation where you have the elected government versus the Babu's situation for the past several months. You know, Punjab government is claiming that the Parali burning has reduced to a large extent in their state, but the fresh data shows a spike, a surge in Parali burning in the state of Punjab. And now stay on with me, Amit, because on our screens we are putting out the numbers which are in triple digits, as Amit and Sushant Mehra are out on the streets to tell you what these triple digits mean to be breathing in. And as I give you a comparison, for example, in America's New York City, between 25 to 30, double digit. That is the air quality index. In Delhi NCR, it's 600, 700, 800. Imagine the sort of air quality that people are breathing in. It's not just about temporary respiratory issues. It is, according to doctors and experts, can have long-term damage. Isn't this criminal negligence literally? What are our policy makers delaying this constantly and not able to find a solution? Sushant, I want to come to you now. किस तरह से जो हम देख रहे हैं बीजेपी जो टारगेट कर रही है अरविंद केजरीवाल को, भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि अरविंद केजरीवाल ने एज चीफ मिनिस्टर एंड एज अ रूलिंग पार्टी इन पंजाब कुछ नहीं किया, सिर्फ फॉल्स प्रॉमिसेस किए. पर बीजेपी उत्तर प्रदेश हरियाणा में भी है, सेंटर में भी है. तो किस तरह से पॉलिटिकल वॉर ऑफ वर्ड्स चल रहा है उसके बारे में हमको बताइए, और क्या कुछ फैसला लिया जा रहा है? जो स्मोक टावर्स बने थे, जो ट्रक्स और जो व्हीकल्स चलती हैं ट्राइंग टू पुट आउट दीज ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर, उसके बारे में भी हमें डिसीजंस बताइए जो सरकार ने लिए हैं. देखिए पूजा, दिल्ली के अंदर जो सिचुएशन खराब होती है उसमें पॉलिटिकल ड्रामा भी जो है वो बहुत तेजी के साथ देखने को मिलता है. पंजाब के अंदर अगर बात की जाए तो जो पराली जलने के इंसिडेंट हैं उनमें बहुत तेजी के साथ इंक्रीज जो है वो देखने को मिला है. 1951 अगर कहा जाए, 1900 से ज्यादा केसेस जो है वो इस वक्त पराली जलने के पंजाब के अंदर जो है वो दर्ज किए गए. सिर्फ पंजाब ही नहीं बल्कि हरियाणा के अंदर भी पराली जलने के मामले हैं. यही वजह है कि दिल्ली की जो हवा है वो सिर्फ पंजाब के कारण नहीं बल्कि हरियाणा, उत्तर प्रदेश भी इसके लिए पूरी तरीके से रिस्पॉन्सिबल है. लेकिन बीजेपी का क्लेम ये है कि कहीं ना कहीं इसके लिए पंजाब गवर्नमेंट, जो कि आम आदमी पार्टी की सरकार है, वो जिम्मेदार है. लेकिन साथ ही साथ अगर बात की जाए तो पंजाब के साथ साथ हरियाणा में जहां बीजेपी की सरकार है वो भी रिस्पॉन्सिबल है. लेकिन सरकार की तरफ से अगर देखा जाए तो पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए तरीके के अलग अलग तरीकों से जो है फॉगिंग जो है वो की जा रही है, वाटर स्प्रिंकलिंग जो है वो की जा रही है. आईटी और आसपास के तमाम वो हिस्से जहां पर प्रदूषण का स्तर सबसे ज्यादा है वहां पर स्प्रिंकलिंग जो है वो सरकार की तरफ से की जा रही है. वहीं अगर बात की जाए तो जो आम आदमी पार्टी की सरकार पंजाब में, उनका क्लेम ये है कि पंजाब के अंदर जो पराली जलाने के इंसिडेंट्स हैं उसमें कमी आई है. लोग पराली जो है वो कम जला रहे हैं. दिल्ली के अंदर भी सरकार की तरफ से हर बार पराली जब जलती है, क्योंकि बाहरी दिल्ली के कई हिस्से हैं जहां पर पराली का जो जलाई जाती है, लेकिन उसके अंदर भी कम करने की कोशिश जो है वो सरकार की तरफ से की गई है. सरकार की तरफ से अगर कहा जाए तो पराली को ना जलने के लिए किसानों को एक घोल जो है वो दिया जाता है ताकि वो पराली जो है वो ना जलाए. लेकिन पंजाब की सिचुएशन अलग है. पंजाब में सरकार जो है वो अगर कहा जाए तो पराली जलाने को लेकर के रोक लगाने में अभी फिलहाल and even in Punjab, Sushant, even in Punjab, there were alternatives that have come in, even by previous governments and this government as well, about different sort of tractors and equipments that have been provided, subsidies have been given, but clearly for many farmers, to them it is stubble burning, which is still easy. It is more time-based because they have to then sow the next crop. And to many farmers, they believe that it's affordable as well and that the government subsidies are not working. So there's a lot of miscommunication. A lot of farmers don't feel assured. And can we only blame the farmers? What about a lot of other alternatives that the government is supposed to provide? That's the whole job. That's the point. They are there at that position. My colleague Himanshu Mishra has now sent us a ground report from Connaught Place. All our colleagues are at different locations. And yet, the similar background of a smoky, hazy surrounding. Take a look. दिल्ली की हवा धीरे धीरे और खराब होती जा रही है. इस वक्त हम लोग कनॉट प्लेस इलाके के इनर सर्किल में मौजूद हैं और यहाँ की अगर हम एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात करें तो आप देखिए सामने बोर्ड लगा है इनर सर्किल AQI 508. आप अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या हालात हैं, क्या कंडीशन है.
और इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी खराब मौसम में, किस मौसम में दिल्ली के लोग रहने के लिए मजबूर है। दिल्ली हर साल अक्टूबर और नवंबर के महीने में गैस चैम्बर में तब्दील हो जाती है। जब अक्टूबर का महीना आता है तो सरकारें बात करती हैं, कहा जाता है कि पोल्यूशन पे कंट्रोल किया जाएगा, तमाम रूल्स रेगुलेशंस भी लागू किए जाते हैं, कई तरीके के प्रतिबंध लगाए जाते हैं, कुछ डीजल गाड़ियों के चलने पर भी रोक लगाई जाती है, कंस्ट्रक्शन भी रोक दिया जाता है। लेकिन क्या इससे दिल्ली के पोल्यूशन पर कोई असर पड़ता है? क्या इससे दिल्ली की हवा साफ होती है? इस सवाल का जवाब दिल्ली वाले बेहद अच्छे से जानते हैं, क्योंकि हर साल जब अक्टूबर का महीना आता है तो दिल्ली का मौसम धीरे धीरे खराब होने लगता है। पास के राज्यों में पराली जलाई जाने लगती है। ये भी एक बड़ी वजह है दिल्ली के मौसम को खराब करने में। So a quick question now to both Amit and Sushant as well. Sushant, first to you, because there were in Delhi some measures also taken, and like I asked you earlier, जो smoke towers थे, जो fans लगाए गए थे आनंद विहार में रकाबगंज के पास, उनका स्टेटस क्या है? क्या उनसे कुछ फर्क पड़ा? क्या और कोई ऐसे measures लगाए जाएंगे? Because अगर अभी emergency measures अभी भी ढूंढे जाएं, तो किस तरह से सरकार उन measures को उनको implement करेगी? क्या पुराने कोई measures अभी भी working condition में है? देखिए पूजा, दिल्ली के अंदर 2 स्मोक टावर जो है वो लगाए गए थे। एक डीपीसीसी दिल्ली सरकार की तरफ से लगाया गया था, जो कि बाबा खड़क सिंह मार्ग पर लगाया गया था, लगभग 24 करोड़ की लागत से लगाया गया था। वो पूरी तरीके से बंद है और इसको लेकर के एनवायरमेंट डिपार्टमेंट ने डीपीसीसी की तरफ से एक रिपोर्ट भी दी गई कि इस पूरे स्मोक टावर की लगाने से कोई फायदा जो है वो आसपास के हिस्से में नहीं हुआ है। और 2021 के अंदर इस स्मोक टावर को लगाया गया था, लगभग 2 साल से ज्यादा का वक्त हो चुका है, लेकिन एयर क्वालिटी इंडेक्स उस आसपास के हिस्से के अंदर कम होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा था। और ऐसे में एक्सपर्ट की जो टीम्स है उनकी तरफ से ये रिपोर्ट दी गई कि इसको बंद किया जाना चाहिए। इसके अलावा आनंद विहार इलाके के अंदर, जो कि सबसे पोल्यूटेड इलाका है, उस इलाके के अंदर सीपीसीबी यानी सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की तरफ से जो है वो वहां पर एक स्मोक टावर जो है वो लगाया गया था। उसकी भी लागत लगभग 22 करोड़ के आसपास थी, वो भी वर्किंग कंडीशन के अंदर नहीं है। और ऐसे में उसकी भी रिपोर्ट जो है वो दी गई है कि अगर ये काम नहीं कर रहे हैं तो इनकी जरूरत नहीं है। लेकिन दिल्ली की जो जनता है, जिसका पैसा लगभग 45 करोड़ रुपए अगर कहा जाए तो एनवायरनमेंट को ठीक करने के लिए जो लगाया गया था, वो पूरी तरीके से बर्बाद होता हुआ दिखाई दे रहा है। ताकि दिल्ली के जो 2 स्मोक टावर है वो पूरी तरीके से बंद पड़े हैं। और ऐसे में दिल्ली के अंदर हेल्थ इमरजेंसी है और आसपास के इन हिस्सों के अंदर जहां पर ये स्मोक टावर है, वहां पर अगर बात की जाए तो पोल्यूशन का स्तर बेहद खराब स्थिति के अंदर है। पूजा।